ओके जी, लास्ट टाइम हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्कस कर रहे थे. टुडे विल कंटिन्यू विद दैट. सो इफ यू रिमेंबर, लेट्स सी how in the last lecture we discussed that how we can decide whether to reject or not reject our null hypothesis. So this is the diagram for that. We have to look at the sample mean, sampling distribution mean, and the hypothesis mean. And if there is a huge difference between them, then that means that we will have to reject the null hypothesis. So today we are going to discuss few more concepts. First concept is two-tailed hypothesis test. What does that mean? Remember that whenever we have a null hypothesis in the form of, sorry, mu is equal to, with the inequality, if there is an equality over here, let it be anything, then in this case your alternative hypothesis is mu is not is equals to 25. Okay, so whenever we have this kind of a concept, so that means we are talking about two-tailed hypothesis testing. Why is that? So remember that when we are talking about a normal distribution, and in this case this is your hypothesized mean, and you are saying that okay, my mu is equals to 25, and your alternative hypothesis is saying it is not 25. When it is saying not 25, there is no sense of direction. For example, it can be way on the right hand side or way on the left hand side. In both the cases we will say that it is not is equals to 25. So because of this very reason we have two critical regions, and if your sample mean falls in this critical region, we will reject our null hypothesis, because we can say that our sampling distribution mean is way less than the population mean. Or if it falls in this region, which is a higher side region, we will say we will still reject our null hypothesis because our sample mean is way higher than the hypothesized population mean. So this is your two-tailed hypothesis test. So for example, if we set our critical region to critical value alpha to be 0.05, then in this case we have two regions. So that means what? That there will be a division. 0.05 will be divided into two values, two sides, to 0.025, which will be on the left hand side and left and right both. So that means we have to calculate this z value, and this for this 0.025, and this is also z is equals to 0.025. So on z, so that means whatever is, I think the value of z will be, z is 1.96 over here, and this is minus 1.96. So everything above 1.96 will be rejected, will result in the rejection of the null hypothesis. Everything less than minus 1.96 will also result in the rejection of the null hypothesis. बात समझ आ गई है? So when we are talking about two-tailed hypothesis, in this case alpha is divided in both the regions on the left hand side and on the right hand side, and the critical regions are defined on the left and on the right hand side. ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया? यस सर, लेकिन ये बोथ साइड्स के लिए कंफर्म करना पड़ेगा हमें? बिल्कुल. जी, आपको बोथ साइड के लिए कंफर्म करना पड़ेगा. ये आपके मैं को लेबल कर देता हूं.
These are your critical region. और मैं पहले बता चुका हूँ क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन एक ही चीज है ना. सो कीप दैट इन माइंड. अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया. होपफुली अभी तक किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है, राइट. ओके. यस अब सर, क्लियर। इसी से रिलेटेड अब एक और जो है उसको कहते हैं वन टेल हाइपोथेसिस टेस्ट. मेरा ख्याल है कि नाउ it should be obvious that what does that mean. So whenever we have a null hypothesis in the form of, for example, mu is greater than is equals to 25, and alternative hypothesis is that mu is the opposite of this is less than 25, right? So in this case we have a sense of direction now. Sense of direction is there. So we are saying that current prevailed hypothesis is that our whatever we are talking about, the population mean is greater than or is equals to 25, right? So any value which is way less than 25, that means on the left hand side, that will be your critical region. And इसी में सर, एक सेकंड में 0.05 अगर होगा जी. अब बताइए. सर ये हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, in that case that population will be also one tail ना. नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. आप जो बात कर रहे हैं स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का, इससे कोई ताल्लुक नहीं है. अगर आपके पास डेटा स्क्यूड आ गया तो इन दैट केस आपके पास ये जेड टेस्ट और ये वो आपका अप्लाई ही नहीं हो सकता. मैंने आपको पहले कहा था कि ये सारे जो वर्किंग है ये आपकी इस प्रिंसिपल पे चल रही है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट. और सीएलटी भी यही कहता है कि आप सैंपल साइज जो बड़ा लेंगे तो इन दैट केस इट विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि एक्चुअल पॉपुलेशन स्क्यूड है या नहीं है. ओके सर, थैंक यू। ओके. अच्छा, अब इस केस में आपकी जो ये अब in this case we have a sense of direction, so that means your critical region is only on the left hand side, and in this case z will be, I think in this case 1.96 it will be minus 1.46. I guess this is the value. You can check it from your z table, that what is the value of alpha is equals to 0.005 on 0.05 on the z table, and I think it is on the left hand side, so it will turn out to be a minus 1.46, somewhere around there. So it means that we only have one rejection region or critical region, and in this case we do not have to divide it by 2 because we are not performing two-tail hypothesis test or two-tail test. So in this case we are performing one-tail test, so that will be only on the left hand side in this particular case, and that means that it will be this region under the curve. So that will be your critical region. So if I just reverse the whole thing, that means our null hypothesis is mu is is less than 25, and your alternative hypothesis will become that it is greater than is equals to 25. Then in this case your critical region will be on the right hand side, and rest everything will remain the same. ठीक है जी? Is it clear? यस सर। Okay, so for this particular region discussion, agar main this whole thing now, this whole region is we will fail to reject null hypothesis. Okay, so you can see that in this case आपके पास एक बड़ा region आ गया जिसमें आप accept कर रहे हो अपना null hypothesis को. So hopefully now you know what is the difference between one-tail hypothesis and two-tailed hypothesis. Let me see that if we can we can do some examples of that. Just a minute. Okay.
ओके जी, ये अब आपके सामने एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन एग्जांपल है, जरा देखिए और बताइए इसमें क्या लिखा है। रिसर्चर क्लेम्स दैट black horses are on average more than 30 pounds heavier than white horses, which average 1100 pounds. What is the null hypothesis and what kind of a test, what kind of test का मतलब इसमें होता है कि आपके पास वन टेल और टू टेल की बात हो रही है। टेस्ट इन दिस केस इज दिस जी। सबसे पहले आपने मुझे नल हाइपोथेसिस लिखवाना है। सो व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस इन दिस पर्टिकुलर केस? सर 30 LBS। सबसे पहले एक काम करते हैं, टू बी ऑन द सेफ साइड, लेट से हम इसको नल हाइपोथेसिस लिखने से पहले हम कहते हैं कि एवरेज जो म्यू हम जो डिफाइन करेंगे वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा होगा। लेट्स राइट इट फर्स्ट जी। पहले बताइए क्या करेगा रिप्रेजेंट? सर जो हमारा मीन आएगा, हमारी किस जो चीज को? सेंट्रल पोजीशन होगी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, इस करंट एग्जांपल के अंदर म्यू आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ द वेट सर। ऑफ वेट्स ही आ रहा है 30 LBS किसका एवरेज। वेट? आपके पास दो पॉसिबल, ब्लैक हॉर्स भी हो सकता है, व्हाइट हॉर्स भी हो सकता है। सर दोनों का बता रहा है ये। वो तो बता रहा है, पर म्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो तो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा ना। सर नहीं पता चल रहा। इसका होगा जी, लेट से मैं कहता हूं एवरेज वेट ऑफ द ब्लैक हॉर्स is represented with this mu. Okay, so now if I write my null hypothesis, it is a status quo. Status quo means the current belief, ठीक है, जो अभी तक प्रिवेल कर रहा है। वो क्या है? Researchers claim that black horses are on average more than 30 pounds heavier than white horses, which average whatever। ठीक हो गया? so इसका मतलब है जो करंट बिलीफ है वो इससे डिफरेंट है, इसका अपोजिट है। ये मतलब है ना, क्योंकि ये तो अब आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ रहा है कि एक रिसर्चर आके कहता है कि नहीं यार, तुम जो पहले सोच रहे थे वो गलत है। मेरे ख्याल में ब्लैक हॉर्सेस जो होते हैं वो व्हाइट हॉर्सेस से 30 पाउंड ज्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो करंट आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो क्या है कि आपके पास जो वेट ऑफ द ब्लैक हॉर्स म्यू है, इट इज समथिंग, यहां पे अब आपने मुझे लिखवाना वो क्या आएगा, जो करंट बिलीफ है आपका, जिसको स्टेटस को मैंने लास्ट में बताया था। सर 30 LBS ही है ना, करंट बिलीफ तो यही है हमारा। 30 है। इसका मतलब है एवरेज एट ऑफ ब्लैक हॉर्स इज नॉट ग्रेटर देन या इट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1130, क्योंकि अगर आपने 1130 को ऐड किया 1130 हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका दोनों के वेट के अंदर डिफरेंस नहीं है। सर हम मतलब ये कैसे करेंगे? हमारे पास तो दो एक किस्म के डाटा है ना, एक हॉर्स वाइट का भी है, ब्लैक का भी है। नहीं, आपके पास एक रिसर्चर ने आके क्लेम ये किया है कि आपका जो एक्सक्यूज मी, आपका जो रिसर्चर ने क्लेम ये किया कि ब्लैक हॉर्सेस और जो व्हाइट हॉर्सेस हैं, इन दोनों के जो डिफरेंस है वो आपका 1130, सॉरी, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 30 का है, 30 पाउंड्स का है। ठीक है, और वो कहता है कि ब्लैक हॉर्स का और व्हाइट हॉर्स का जो डिफरेंस है वेट का वो 30 है। तो इसका, और वो कह रहा है कि ब्लैक हॉर्सेस का जो वेट है वो व्हाइट हॉर्सेस से ज्यादा है। ठीक है, 30 पाउंड ज्यादा है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, जो ब्लैक हॉर्सेस हैं उनका वेट जो अभी तक हम कहते हैं वो दोनों का एक दूसरे से फर्क नहीं है, वो लेस देन है। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह रहे कि ब्लैक हॉर्स जो है उसका वेट जो है वो आपका इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द व्हाइट हॉर्स। ठीक है, ये आपके रिसर्चर ने अभी आके एक और हाइपोथेसिस या क्लेम दिया है, इससे पहले ये बिलीफ नहीं था। ठीक है,
तो वो इससे पहले जो करंट स्टेटस को चाह रहा था वो ये कहता है कि दिस इज नॉट ग्रेटर देन द वाइट वेट एंड इट इज हाउ मच नॉट बेटर, बिकॉज इस केस में आपको ये कह रहा है कि इसका ये मतलब है कि ब्लैक हॉर्स को वो 1130 आ रहा था, तो अभी तक जो हमारा करंट बिलीफ है कि दोनों का वेट जो है 1130 है, यानी दोनों के वेट लेस देन और इक्वल टू। लेस देन, हाँ वो लेस देन इज इक्वल टू आ गया ना, क्योंकि बिलीव तो वो ग्रेटर देन कह रहा है ना। यस सर, ये अल्टरनेटिव हो गया किस्म का। एग्जैक्टली तो अल्टरनेटिव आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा कि म्यू इज ग्रेटर देन आपके पास 1130। ठीक हो गया। जब आप नल हाइपोथेसिस लिख देते हैं ना, दिस इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, दिस इज ऑलरेडी नोन बिकॉज इट विल बी द ऑपोजिट ऑफ दिस नल हाइपोथेसिस। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इस केस में किस किस्म का टेस्ट कंडक्ट होगा। नल हाइपोथेसिस तो आ गया। सर 2 टेल वाला हमारे पास या 1 टेल वाला आएगा? बताएं कौन सा आएगा। 1 टेल सर। वन टेल, वाई? सर बिकॉज हमारे पास जो स्पेस आ रही है वो एक तरफ से बहुत ज्यादा है। स्पेस एक तरफ से बहुत ज्यादा है। नहीं, तो मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया कि इसमें डायरेक्शन नहीं नजर आ रहा है, लेस देन और ग्रेटर देन वाला, इक्वालिटी में यस आता सर। है। तो दैट इज वाई अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो अगर मीन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 1130 पे है, ठीक है, और इस केस में हम कहते हैं वो लेफ्ट साइड पे है, यानी कि वो हम कहते हैं 1130, तो इसका मतलब है अगर आप क्रिटिकल रीजन की बात करेंगे वो आपका राइट साइड पे आएगा कि आपके पास 1130 से बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये आपका क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। तो ये सारी आपके पास जो होगा ये एक्सेप्टेबल 95% जो वैल्यू है ये यहाँ पे आएगी और 5% आपके यहाँ पे चला जाएगा। सो दैट इज योर क्रिटिकल रीजन और रेस्ट एवरीथिंग इज योर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो दिस इज योर राइट टेल्ड टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक हो गया। एक आध और एग्जांपल जल्दी से कर लेता हूं। जी, अब इसको देखें और इसके बारे में बताइए। A package of gum claims that the flavor lasts more than 39 minutes. What would be the null hypothesis of a test to determine the validity of the claim? जी, सर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 39 आएगा। अब देखिए कि ये आपका जो इसका जो दिखा है ना, ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये क्लेम कर रही है, नया क्लेम आपका प्रोड्यूस कर, तो इसका मतलब है कि अभी तक जो आपके पास जो आइडिया या नल हाइपोथेसिस है वो इसका अपोजिट चल रहा है। ये लेस देन आएगा 39। जी बिल्कुल। तो आपका नल हाइपोथेसिस जो होगा वो होगा म्यू, वेयर म्यू इज द एवरेज टाइम लास्ट योर फ्लेवर लास्ट, ठीक है, विच इज सॉरी, सो इस केस में आपके पास क्लेम दैट फ्लेवर लास्ट मोर देन 39 मिनट्स। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है कि म्यू लास्ट मोर देन 39 मिनट्स, इट इज ग्रेटर देन 39। तो इसका अपोजिट जो आपके पास बनता है कि आपके पास म्यू इज 39। ठीक है जी। यस सर। ओके, अब इस केस में जल्दी से बताएं ये कौन सा टेल टेस्ट है। सर 1 टेल ही आएगा। वन टेल से अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेफ्ट या राइट? सर राइट। एग्जैक्टली, ऊपर वाला केस ही है, राइट टेल टेस्ट। सो ओके गुड, मेरा ख्याल है अब होपफुली ये सबको थोड़ा सा इसमें समझ आ गई होगी कि किस तरह आपके पास ये काम करता है। ठीक हो गया। और चलें एक और जल्दी से थोड़ा सा वो डिफरेंट है वो कर लेते हैं, वो है ये एक और एग्जांपल है जी। An ice pack claims to stay cold between 35 and 65 minutes. What would be the null hypothesis to test to determine the validity of the claim? What sort of test it would be?
सो इसका मतलब है एन आइस पैक ये कह रहा है कि उसको वो इट विल रिमेन कोल्ड बिटवीन 35 एंड 65 मिनट्स। तो ये आपका स्टेट अवे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि ये अल्टरनेटिव मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक हो गया, बल्कि नल ही लिख लेते हैं। नल इसका इसका क्या होगा कि आपके पास जो 35, जी क्या होगा 35 greater than 31 and less than 60 or equal to 65 sir. म्यू इज ग्रेटर देन 35 एंड ऑल्सो द दूसरा रीजन उस केस में जो आ रहा है, ये मैं नल हाइपोथेसिस लिख रहा हूं, म्यू इज ग्रेटर देन 65, ठीक है। और जो इस केस में जो अपोजिट बनेंगे वो आपके ये बनेंगे, राइट। सर ये जो हमने अल्टरनेटिव लिखा है इसमें 35 से ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटर देन 35 एंड लेस ये देन आपका 65। अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना, याद रखिए। ये आपका नल हाइपोथेसिस नहीं, वो इधर आ रहा है, वो आप ग्रेटर देन जो कह रहे हो वो इधर आ रहा है, लेस देन 65 ये आ रहा है, वो जो रीजन कह रहा है। तो इसका यह मतलब है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो तो इसका अपोजिट होना चाहिए ना, उसमें तो वही कह रहा होगा कि नहीं आपका जो म्यू है वो आपका क्या है, लेस देन 35 है और म्यू ग्रेटर देन 65 है, अपोजिट होना चाहिए नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, ठीक है। यस सर। बस ये आपका टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट है, ठीक है। और टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट है क्योंकि आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे 35 की लिमिट आप सेट कर रहे हो इसमें और एक 65 की सेट कर रहे हो, तो इस साइड पे आपके पास वही होगा, एक रीजन आएगा, क्रिटिकल रीजन आएगा इस साइड पे, और इसी तरह आपका राइट साइड पे भी क्रिटिकल रीजन आएगा जो 65 से दूर होगा, ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास ये टू टेल्ड आपका हाइपोथेसिस टेस्ट बन जाएगा। होपफुली यहां तक सबको समझ आ गई जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। यस सर। ओके। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स और हैं जो हम कहते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। अच्छा, याद रखें कि जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास जो जो वैल्यूज क्रिटिकल रीजन में फॉल करती हैं, ठीक है, वो लेट इट बी वन टेल और टू टेल, इसका ये मतलब है कि क्रिटिकल रीजन में जो भी वैल्यूज प्लेस होती हैं वो आपकी नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन में रिजल्ट करती हैं। बाकी तो जितने भी आपके केस हैं वो आपके पास यहाँ पे फॉल करते हैं 95%, और वो आपके पास जो वो रिजेक्शन में हेल्प नहीं करते, दे डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है। सो देयर आर एटलीस्ट 4 सिनेरियोज जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर वी हैव अ ट्रू हाइपोथेसिस, ट्रू नल, ये ट्रू नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं, इफ वी हैव अ ट्रू नल हाइपोथेसिस एंड बल्कि इसमें अ ट्रू हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है, ड्यूरिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द सेकंड केस इज a true hypothesis is not rejected. Number C is a false hypothesis is not rejected. And lastly, a false hypothesis is rejected.
Okay, these are the four possibilities. ठीक है, so इस केस में what we are saying is कि आपके पास जब एक्सट्रीम को वैल्यूज आती हैं तो क्या आपके पास केस बन सकता है कि आपके पास एक ट्रू हाइपोथेसिस है. ट्रू हाइपोथेसिस मींस व्हाट? a null hypothesis which is true. So अगर आपके पास पॉपुलेशन है, एक आपके पास उसमें से सैंपल लेते हो, यू एंड अप इन 5% रीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू एक्चुअली रिजेक्ट दिस सैंपल बाय सेइंग दैट दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस पॉपुलेशन. इसका यह मतलब है, जब आप ये कहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यू आर एक्चुअली रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस. ठीक है, सो दिस इज योर एरर. दिस इज योर एरर, और इसको हम कहते हैं दिस इज योर एरर. इसको एरर टाइप 1 कहते हैं. ठीक है, ये क्या कौन सी एरर है कि अगर आपके पास एक ट्रू हाइपोथेसिस हो, इफ यू एंड अप रिजेक्टिंग इट देन इट विल बी कंसीडर्ड एज टाइप 1 एरर. सेकंड केस इज a true hypothesis is not rejected. So in this case you are saying that it is from the same population but it is not rejected, then it is fine, this is correct, there is no error in that. Then we have a false hypothesis is not rejected. इसका क्या मतलब है कि we have a false hypothesis and it is also not rejected. So इसका क्या मतलब है कि is there any error in that or not? एरर होगा सर. Good, yes, there is an error, and this error is called type 2 error. That means that we should have rejected the false hypothesis but we end up not rejecting it. Okay, so in this case this is another error. And lastly, D is that our false hypothesis is rejected. This is your fourth type, and in this case we will reject the null hypothesis. So this is no error, so that is absolutely fine. So keep that in mind. These are the possible 4 errors which can be generated. So let me बल्कि जल्दी से मैं आपको एक डिसीजन H not is true, H not is false, and your decision is reject, and इस केस में fail to reject. ओके, सो ये अगर आपके पास टेबल है, सो इस केस में दिस इज योर टाइप 1 एरर. This is fine, there is no error in that. This is also fine, there is no error in that. But this is your type 2 error. Okay, so keep that in mind that these are the possible errors which can be generated. And remember that alpha plays an important role in type 1 error. Right? कोई बता सकता है कैसे? Any idea? क्या रिलेशन है टाइप 1 एरर के अल्फा के साथ? नहीं पता सर. ओके, देखें, आप जब भी आप टाइप 1 एरर का क्या मतलब है कि आप, मैं सिर्फ टाइप 1 की भी बात कर रहा हूं, क्या कि आपके पास हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था और वी स्टिल एंड अप रिजेक्टिंग इट. ट्रू से क्या मुराद है कि इसका ये मतलब है कि आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यू आई है, एक्सट्रीम वैल्यू जो भी आपके पास आई है वो ये थी, लेट्स से दिस इज योर एक्सट्रीम वैल्यू, और आपने अगर लेट्स से अल्फा की वैल्यू इधर सेट किया, इफ दिस इज द अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा व्हिच यू हैव सेट, so you will reject null hypothesis, and this is your value of alpha. Exactly, right? यस सर, जो रिजेक्शन बाउंड्री है उससे बाहर है वो जो सैंपल भी है. Exactly. Also, if I want to crack this one, this law, let's say this H naught was true, so in that case how I can crack it, remove this error? All I have to do is set my boundary maybe over here, alpha can be set over here, then in this case this type 1 error will be removed. Agreed? Yes sir.
ओके बट याद रखिए कि वेन एवर वी आई डू दैट, इस केस में मुझे प्रॉब्लम क्या आएगी कि मैं अल्फा को जो राइट पे मूव करता जाता हूँ, इसका मतलब है आई विल एंड अप जनरेटिंग अनदर काइंड ऑफ एरर विच इज टाइप 2 एरर। क्योंकि इसका क्या मतलब होगा कि हो सकता है कि अब आपके पास जो एच नॉट है वो फॉल्स हो और मैं उसको फेल टू रिजेक्ट करने लग जाऊं, क्योंकि मेरे पास ये बाउंड्री इतनी दूर चली गई है कि इट इज रियली डिफिकल्ट टू रिजेक्ट एनी हाइपोथेसिस। यस सर, और भी काफी सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें इंक्लूड हो एग्जैक्टली, जाए। तो इसका एग्जैक्टली इसका मतलब है देयर हैज टू बी बैलेंस व्हिच नीड्स टू बी मेंटेन, बिकॉज अगर आप टाइप 1 एरर को कर रिड्यूस करने के लिए आप अल्फा को राइट पे शिफ्ट करते हो, सो इन दैट केस यू मे इंट्रोड्यूस टाइप 2 एरर इन दैट, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन दीस टू वैल्यूज। ओके यस सर। ओके अब जल्दी से एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके अंदर हम कहते हैं कि वन सैंपल टी टेस्ट जो होता है, ये वन सैंपल, इसको मैं टी टेस्ट क्यों कह रहा हूं ये भी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। याद रखिए कि जो जो स्टेप्स हैं वो सेम है कि सबसे पहले आपने स्टेट नल हाइपोथेसिस एंड ऑफ कोर्स ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है बाय डिफॉल्ट इसके साथ ही है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने करना है कि सेट या पिक करना है योर अल्फा या क्रिटिकल वैल्यू, critical value, normally it is 0.05 if not mentioned, ठीक हो गया। नंबर 3 is analyze result and lastly conclude से मुराद होगा reject या fail to reject null hypothesis। अब इस केस में याद रखिए कि आपके पास z जो स्कोर है, ये z वैल्यू वो कैलकुलेट कैसे होना है। z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू, मैं पहले फार्मूला लिख लूं फिर एक्सप्लेन करता हूं, स्क्वायर रूट एन। इस केस में ये और ये दो वैल्यूज जो हैं ये आपका पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन। अब याद रखिए कि नॉर्मली वी डू नॉट हैव द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। याद रखिए द स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑफ पॉपुलेशन, इट इज नॉट ऑफ द सैंपल, ठीक है। इट इज नॉट of the samples, so it is important, remember that we are talking about population standard deviation. This mean is normally given because this is what is mentioned in your null hypothesis, that mean of the hypothesis population is 25 या कुछ और वैल्यू जो होती है वो आमतौर पे गिवन होती है, but standard deviation of the population is normally not given, ठीक हो गया। so but let's say for the sake of discussion, if it is given in very limited cases, then in this case what you have to do, you have to calculate the z score, and z score के साथ आपने चेक ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो क्रिटिकल रीजन का वैल्यू है लेट्स से वो 1.64 है फॉर 0.05 अल्फा लेवल, दिस इज योर z की वैल्यू, ठीक है। सो दैट मींस you have to calculate the z score for a given example या problem. If the calculated z score falls in this critical region, then we will reject our null hypothesis. But if z score is on the left hand side of this critical value, then in this case we will fail to reject our null hypothesis, okay। और ये z जो है वो वही है जो कि आप लोग z टेस्ट या z स्कोर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, सो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं है। जस्ट लाइक सैम्पलिंग एरर। जी, मतलब हम लोग जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं वो एग्जैक्टली वही चीज है। अब इस केस में मैं लेट्स डू एन सिंपल एग्जांपल, उससे आपको काफी सारी चीजें होपफुली क्लियर हो जाएंगी।
ओके अच्छा जी, ये जरा क्वेश्चन देखिए। हाँ सही कह रहे हो फरजाद, कोई और भी बोल रहे हैं यार, आप लोग एक ही बंदा बोली जा रहा है। अच्छा अच्छा, let's say the question is the school nurse thinks the average height of 7th graders has increased. The average height of a 7th grader 5 years ago was 145 centimeter with a standard deviation of 20 centimeter. She takes a random sample of 200 students and finds that the average height of her sample is 147 centimeter. Are 7th grader now taller than they were before? Conduct a single tailed hypothesis test using word significance level. So सबसे पहले let me highlight the value. सबसे पहले देखिए, इसमें 5 years बैक जो था 145 सेंटीमीटर आपके पास म्यू है। ये म्यू क्या था? ये पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन की बात नहीं हो रही। दिस इज 145 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज आल्सो गिवन व्हिच इज सिग्मा इन दिस केस. So normally these values are not always given, but in this case population mean and standard deviation is known, but not in all the cases. अब इस केस में यहाँ तक समझ आ गई है ना सबको? यस सर, ये हमारा एक किस्म का शी थिंक्स लाइक इट्स अ क्लेम ना। ये क्लेम अभी नहीं है, क्लेम यहां से शुरू हो रहा है। क्लेम ये है इसका, ये अब आपका ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ये आपका स्टेटस को है कि आपका 5 साल पहले जो चल रहा था वो क्या सिस्टम चल रहा था। सही है? एग्जैक्टली सर। तो अब इसमें से इसका जो क्लेम है, अपने उसने जो क्लेम या अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था उसको चेक करने के लिए उसने क्या किया, शी टेक्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 स्टूडेंट्स। तो इस केस में सबसे पहले सैम्पलिंग जो हुई है वो रैंडम हुई है क्योंकि इसमें मेंशन्ड है। सो दैट मींस वो मैंने लास्ट टाइम जो आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे उसमें रैंडम सैम्पलिंग भी हो रही है और size of a sample is also greater than 30 which is 200 in this case. So we are fine, we can perform the hypothesis testing. समझ आ गई है ना सबको? और ये इसकी वजह से अब आपके पास स्ट्रेट अवे CLT अप्लाई हो जाएगा। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इस केस में इसको अगर मैं बताऊं कि उसका पॉपुलेशन ऑफ ये 7th ग्रेडर है, दिस इज पॉपुलेशन ऑफ अ 7th ग्रेडर, शी हैज टेक अ सैंपल। और इसमें बिलीफ अभी तक ये था कि इस पॉपुलेशन का मीन वैल्यू जो है वो है 145 और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है 20 और जो इसके अंदर जो सैंपल मीन है इसकी म्यू की वैल्यू है 147 और एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, अब इसके अंदर अब आपने सारी चीज और इसका साइज जो है 200 है, एन इज इक्वल्स टू 200। सो इस केस में अब आपने बताना है कि वाकई क्या हम इसमें सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखना है। नल हाइपोथेसिस इसमें क्या है? नल हाइपोथेसिस इज द मीन एवरेज वेट इज इक्वल्स टू या इज ग्रेटर देन, क्या होगा बताओ? सर 145। सो इसका क्या मतलब है कि 145 इज इक्वल्स टू होगा या लेस देन इज इक्वल्स टू 145 होगा? सर लेस देन इक्वल टू। ठीक हो गया। अब आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वही है कि उसने कहा कि एवरेज हाइट ऑफ द ये वो व्हाटएवर है फाइंड दैट कि अब उसकी 147 हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपके पास बनेगा वो ये होगा कि मीन इज ग्रेटर देन 145। सही है? वो कह रही है कि एवरीथिंग दैट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है ना, हैज इंक्रीज्ड। सो इसका Yes, मतलब है sir. तो बिकॉज ऑफ दिस आपके पास जो टेस्ट करना है वो कौन सा होगा जी? राइट टेल्ड टेस्ट कंडक्ट होगा इसके ऊपर। ये भी समझ आ गया? Yes, sir. राइट साइड से देखेंगे। बिल्कुल। सो इस केस में अब आपके पास इसमें आपने z स्कोर कैलकुलेट करना। z इज व्हाट? द सैंपल मीन व्हिच इज x। इस केस में x की क्या वैल्यू है जी? 147। ठीक है, माइनस द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन व्हिच इज 145 व्हिच इज म्यू, ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है। That will be divided by the standard deviation of the population which is 20 which is given, and that will be divided by square root of n which is 200 in this case. Agreed? सबको समझ आ गया? Yes, sir. Okay, so इस केस में it will turn out to be around 1.414. Okay, so अब सॉरी मैं एक चीज जो मिस पहले कर गया वो ये था कि अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.0
0.05 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप जी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, जी टेबल को चेक करोगे, इट विल टर्न आउट टू बी अराउंड 1.64, 1.64, राइट। सो इस केस में आप जब पॉपुलेशन की बात करोगे तो इसका मतलब है कि आपका रिजेक्शन रीजन जो होगा वो 1.64 एंड बियॉन्ड में होगा। एग्रीड, ये भी बस सबको समझ आ गई। और ये अल्फा 0.05 से कैलकुलेट हो रहा है, और जो पॉपुलेशन मीन कंसीडर की जा रही है वो 145 है, और एक आपके पास जो वैल्यू 147 आई है, ठीक है। अब ये जब आपने कैलकुलेट जेड स्कोर किया तो 1.414 आया, तो इसका क्या मतलब है कि जेड वैल्यू इज नॉट इन द क्रिटिकल रीजन। सारे इस बात से एग्री करते हो? क्यों? क्योंकि आपका 1.41 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है इसके। यस सर, ये राइट में हमारे पास 1.64 और अल्फा 0.05 है। तो इसका क्या मतलब है कि वी रिजेक्ट करेंगे हेल्प नल हाइपोथेसिस? रिजेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं, कर क्या सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको जो सर अभी तक कर बता। कर सकते हैं सर। नहीं कर सकते आप। क्यों सर? कैसे कर सकते हैं? आपका क्रिटिकल रीजन में वैल्यू नहीं आई तो आप कैसे उसको रिजेक्ट करोगे? ये क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन तो ये है, और वैल्यू आपकी यहाँ पे कहीं पे आ रही है। ओके ओके सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गया। सो वी कैन नॉट, और बल्कि कहेंगे वी फेल्ड टू फेल टू reject रिजेक्ट। null hypothesis. So that means that the sample mean of 147 got by the school nurse is purely by chance, और फ्रॉम and अनदर पॉपुलेशन। नहीं 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 नहीं, अनदर पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ ये बाय चांस है। इट इज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, बट इसके अंदर आप कह सकते हो कि आपके पास कुछ एक्सट्रीम केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास 20 सेंटीमीटर की तो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, तो ये आपका इसके अंदर आ सकता है। तो ये आपने जो सैंपल लिया था उसके अंदर ये 147 आ गया है। आप और सैंपल लोगे तो हो सकता है आपको 145 के आसपास ही मिले। तो 147 कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ओके सर। अनदर पॉपुलेशन नहीं कहना, वो गलत है। सही है। सो वी फेल टू रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दी नल हाइपोथेसिस, और उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए जब आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू गिवन हो। सही है, यस सर। ये सबको समझ आ गया जी? आगे ये नहीं आया, क्या क्वेश्चन है किसी का? ओके अच्छा, इसमें एक दो चीजें मुझे, लेट मी सी। अच्छा, याद रखिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें मैं सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा इस वक्त थ्योरेटिकल भी बता दूं। इस केस में अगर आपको याद हो कि ये अगर आपके पास एक हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन के की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये 145 था, और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी वो तकरीबन 20 के करीब थी, 20 थी यहाँ, ठीक है। तो 20 का मतलब है कि ये आपके पास 20 इज 165 और ये 125, ये होगा। और ये टोटल आपके पास जो होगा 64% होपफुली डेटा को कवर कर रहा होगा अंडर द कर्व। ये सबको समझ आ गया जो हम पहले किया था। अब मेरे पास एक और सैंपल आया। सैंपल ये कहता है कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 147 आ रही है समवेयर ओवर हियर, ठीक है। और ये 147 जो अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या वो इसी पॉपुलेशन में से आ रही है या फिर हमारे पास कोई और पॉपुलेशन है और उसका इसी तरह कर्व है और ये इसका हिस्सा और इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। हमारा हाइपोथेसिस ये कहता है कि ये जो 147 है ये आपका किसी और पॉपुलेशन का हिस्सा था जिसका मीन कोई और था, लेट्स से वो पहले से ज्यादा 150 या कुछ और हो चुका है, और 147 जो है ये मेंबर ऑफ दिस 150 था और इस पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं था, तो इसलिए हमें ये वाला जो आइडिया इसको रिजेक्ट करना चाहिए।
तो जी स्कोर क्या करता था, अगर आपको याद हो, जी स्कोर ये करता था कि दोनों के जो मीन्स होते थे उनको एक पॉइंट पे ला के दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को प्लॉट करता था और फिर चेक करता था कि इफ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू और नॉट। ठीक है ना, दोनों के मीन को, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन भी लास्ट टाइम कह रहे थे, और इसके बाद हम चेक करते थे कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में कितना क्या फर्क है भी है। और अगर इन दोनों के मीन को दरमियान में रहने के और स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ बेसिस के ऊपर अगर डिफरेंस नहीं आता तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरह की हैं। सो इस केस में याद रखें कि अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मिनिमम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती जाएंगे कि एक दूसरे में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, थिंक ऑफ इट, वो हमने लास्ट टाइम जो सेक्शन कहा था कि सेक्शन क्विज के सेक्शन ए के रिजल्ट्स ये हैं और सेक्शन बी के रिजल्ट्स ये हैं, इन दोनों में अंदर कोई डिफरेंस अगर नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर से सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। ठीक है, मैं अभी तक इतना ही है। मैं आज जो है मेरी यहाँ पे लाइट मेरी भी चली गई है, तो मैं अब वो कंटिन्यू इसलिए नहीं करना चाह रहा, मैं नहीं चाहता कि अभी शट डाउन हो जाए चीज़ें। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे और आगे हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। चलें ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।